The remaining part of the previous lecture, which is the storage of municipal solid waste within the vicinity before the collection, we had previous lecture, and we will be discussing those topics. We will be starting with the collection of same solid waste from the municipalities or the households. There are few basic terminologies regarding the storage of the waste. For example, container, containment, and the contaminate. What are the meaning of all these three terminologies? We will be defining these three as well. Container means a portable device used for the collection, storage, and transportation of solid waste, including but not limited to reusable containers, disposable containers, and detachable containers. It depends upon the collection machinery that what kind of containers are you using, and it also depends upon the nature of waste, that what kind of generated in a community and what kind of containers are required for that waste. Similarly, there may be a type of waste as well, irrespective of its moisture contents presence or absence. There could be construction and demolition waste which needs relatively robust containers as compared to the general waste. There could be green waste which is coming regularly from a park, stadium, or any other green patch in the city. The requirement of container for such waste would be a different thing. Similarly, there can be a market, there can be an institution, there can be a household. All or these units require different types of containers, and the nature of the waste also affects the type of container in terms of its reliability and durability. Then comes the contaminant. It means any chemical, physical, biological, or radiological substance that does not occur naturally in the environment or occurs at concentrations greater than natural background levels. So it is contaminant is just as like the pollution. Then comes the contaminate, and contaminant means the release of solid waste or gases emitted by the solid waste, such that contaminants enter the environment at concentrations that pose a threat to human health or the environment, or cause a violation of any applicable environmental regulation. So it is a substance that threats the environment or the human health, and it is again once again it is pollution, but it threats the human health and the environment uh, regarding its damage or degradation. These three terminologies are related to storage because when you store the solid waste at a single point and you do not collect that solid waste for a very long, you do not provide a container, then there can be contamination through the contaminate. The contaminate would be leaching down the groundwater, or it can contribute to the surface flow when it rains or precipitates, and then it can pollute your surface water bodies as well as damage or provide anesthetic values in your vicinities. Then comes the capacity of containers, which must be selected wisely. In case of 7 days per week service, at least 50% excess capacity should be allowed. In case of 6 days per week service, at least 100% excess capacity needs to be allowed. And capacity must be determined on the basis of peak loading periods of the year. Capacity means how many containers should be there at a single point when you want to store your daily generated waste. So अगर तो हम ये देखते हैं कि हमारा वेस्ट जो है वो डेली कलेक्ट हो रहा है, देन यू नीड अ लिटिल बिट additional capacity of containers in terms of irregularities or fluctuations. But if you collect the waste from a certain vicinity for 5 days or 6 days, then you must provide maximum storage capacity, so that when you are not visiting that area for the collection
waste, then this waste must remain in the containers rather than it is exposed to the environment and dumped openly as a heap of solid waste in the middle of the street, and then it is providing the or producing the leachate or contaminate, which can contaminant which can contaminate the environment or the human health as well. So the capacity of containers at a single point means a lot to the solid waste management system, and it should be selected wisely. It should be selected by the repeated experiences or repeated values taken regarding the waste generation rate from that particular area. हम लोगों को पता होता कमर्शियल एरिया है तो वहां से डेली बेसिस पे इतना वेस्ट आ रहा है तो देयर शुड बी अ कंटेनर ऑफ दिस मच कैपेसिटी ओवर देयर. अगर कोई हाउस होल्ड कभी तो वहां से आने वाले वेस्ट की भी हमें वहां से ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं आएगी, कमर्शियल एक्टिविटी में ज़्यादा हो सकती है. तो ये हमें इन चीज़ों का आइडिया होता है. और फिर एक तो ये हमें हमारे प्रीवियस नॉलेज या लोकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटी, कि कितना कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए. एक तो लोकल नॉलेज के वेस्ट जनरेशन रेट क्या है उस एरिया का. दूसरा आपका अपना बिल्ट इन सिस्टम कि आप कलेक्ट कितने दिनों के बाद करते हैं. वट एवर इज दी वेस्ट जनरेशन रेट एट दैट पॉइंट, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है. आर यू कलेक्टिंग दैट वेस्ट ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ. तो उस हिसाब से फिर आपको स्टोरेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसकी कैपेसिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है. सो इट इज़ नॉट अ सिंगल सिस्टम फिट टू एवरीबॉडी और एवरी स्ट्रीट. It must be addressing the issues of particular areas in terms of storage of waste. We call it integrated solid waste management system rather than solid waste management system. We integrate different techniques and different ideas to a single platform or system. That's why we call it integrated solid waste management system. On-site storage and handling activities associated with the handling of solid waste until they are placed in the containers used for storage before collection. अब ये वो पॉइंट है जो आपके बिल्कुल हाउस होल्ड के अंदर, ये वो एक्टिविटी है जो आपके हाउस होल्ड के अंदर जो परफॉर्म की जा रही है. लाइक स्टोरेज कंटेनर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द म्युनिसिपल कमेटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी. Solid waste management company provides containers and place those containers in the streets, not inside the property. तो इनसाइड द प्रॉपर्टी जो वेस्ट को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है आफ्टर जनरेशन, कैसे उसको कंटेन किया जा रहा है, कंटेमिनेशन से कैसे बचाया जा रहा है, कंटामिनेशन प्रोवाइड करने से या प्रोड्यूस करने से कैसे बचाया जा रहा है, ये हैंडलिंग कहलाती है. इट इज़ प्रायर टू स्टोरेज पॉइंट. और ये हर एक हाउस होल्ड में, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक कमर्शियल मार्केट में, हर एक जगह पे अलग तरह से होती है हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. इस वजह से बिफोर रीचिंग टू द स्टोरेज पॉइंट जो एक्टिविटीज़ हैं दोज आर एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. और अगर आप करते हैं स्टोरेज की बात करते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसमें देयर आर सम फैक्टर्स, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर affecting this method or this step or this functional element in solid waste management system. But generally you need to look in the types of the containers which are being used, and once selected the types of containers, either it would be metallic container, it would be a plastic container, it would be a masonry structure, or whatever the type of container has been chosen. Then comes the location of its placement. Where would be this container placed in terms of storing the solid waste for a certain time period? Then comes another factor, public health. In terms of storage, आप कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी है. आप अगर 3 दिन के बाद कलेक्ट करते हैं तो what would be the impact of that stored waste for 3 days over the year, and what would be the impact in terms of public health.
Then comes the aesthetics, generally how it appears in general outlook of that area. Then comes the methods of collection. How do you collect that waste? Either it is being collected manually or mechanically, or you need machinery to collect that waste over there. आपको बड़ी मशीनरी चाहिए कि आप 5 दिन के बाद वहाँ पे and the amount of waste is too much, तो फिर आपको वो collect करने के लिए obviously आपको फिर वहाँ पे ज़्यादा बड़ी मशीनरी चाहिए होगी and more resources to collect that waste. Then comes the detail of these factors. For example, we had discussed the types of containers. It depends on the characteristics of solid waste collected, as mentioned earlier. Large storage containers, domestic solid waste, flats, apartments. For example, containers at curbs, large containers on a roller, commercial, industrial areas, collection frequency, space available for the placement of containers. All these factors are affecting the selection of the types of the containers. Similarly, if you are going to provide containers for the residential area, then residential area refuse bags are 7 to 10 liters, which are being provided to households so that they can put their waste in those garbage bags or refuse bags, hand over it back to the municipal sanitary workers so that the maximum collection efficiency can be ensured, rather than they are throwing that waste inside the house as outside the household and putting in the vacant plots or dead end street corners. So it would be wasting more resources of municipality in terms of its collection, as well as the static value of that area would be deteriorated. Similarly, rubbish bins can be provided to the households which are having 20 to 30 liters volume. Large mechanical containers more commonly used to cut costs, reduce labor time and collection costs. It must be standardized to suit collection equipment. In terms of the container location, there are various factors which further affect the container location, side or rear of house. What are the dimension of a household, and at what point you are putting or placing that container? Is it in the front, at the front of the household, or at the side of the household, or at the back side of the household? Then comes the your streets, dead ends in the streets, closed streets or the open streets, special enclosures, apartments, etc. Basement, early newer complexes or near towns. All these factors affect the location of container. Public health relates to on-time collection to avoid the spread of diseases by vectors, which is very first or prime objective of the solid waste management system. Aesthetics must be pleasing to the eye. Containers must be clean, shielded from public's view. Then there are various types of residential or commercial or industries or neo colonies areas which need different types of storage systems, and there can be various reasons of placing the containers in all these type of localities. For example, in residences on the side of the main entrance, garage or lawn at rear of the house or other designated places. In commercial area, for commercial areas and high-rise buildings, especially built platforms or enclosures to be provided in the plans as shown in the figure. Earlier I showed you the vessel collection system from the high-rise buildings, and similarly we had some larger containers in terms of commercial use as well. अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कमर्शियल कंटेनर्स हम लेटर ऑन देखेंगे स्लाइड्स में. इंडस्ट्रीज के कंटेनर्स भी रिलेटिवली लार्जर कैपेसिटी के होते हैं because they are
more waste in a single day. For convenient pickup, a place to be fixed in consultation with the collection agency. वहाँ पे उनकी मूवमेंट की भी हिंड्रेंस ना हो, एंड सिमिलरली इंडस्ट्रियल जो आउटलुक है उसमें भी कोई इशू ना हो, तो बोथ द स्टेक होल्डर्स on a table and they discuss or select the site where the container must be placed. New colonies in such plans, the places should be fixed for provision of communal storage units on the roadside at convenient locations in accordance with the principles of aesthetics and sanitation. These are for the new developments, or you can say that the colonies or towns being developed surrounding the every city. Then communal storage means the masonry structure. It may be stationary or liftable. Stationary unit includes masonry or concrete structures or large steel containers. These are being used locally but have following drawbacks. स्कैवेंजिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, वेस्ट थ्रोन आउटसाइड द कंटेनर्स, बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जाना चाहते बिकॉज द वेस्ट इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर करेंगे तो देन देयर वुड बी द anaerobic condition is developed inside the heap of that solid waste, and then there is the odor issue. So the person who bringing the waste to throw in that container won't be like going to that container, and it will be like it would be handled in terms of the person who is coming to throw the waste would be throwing the waste from a far distance, and that would be like outside the container as well. Or these are being used locally but have no following drawbacks in terms of waste thrown outside the containers, more time required to empty due to manual handling. यहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, इसमें से सॉलिड वेस्ट को निकाल के कलेक्ट करके लेके जाने में इटसेल्फ एक आपको ज़्यादा रिसोर्सेज टाइम और मेहनत चाहिए, तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। और ज़्यादातर वहाँ पे हैं जहाँ पे आपकी डेली स्टोरेज या तो डेली कलेक्शन नहीं है या फिर आपका वेस्ट जनरेशन रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब होता ये भी है ना कि आप दूसरे कंटेनर्स रखते हैं मेटेलिक या प्लास्टिक के जो वैल्यूएबल मटेरियल के होते हैं, तो लोग उसको चुरा के ले जाते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे दीज थिंग्स। Then comes the on-site storage, communal storage. Liftable units, these are lifted mechanically and have medium 0.5 to 4 cubic meter and large 6 to 40 cubic meter sizes. Medium storage used for multi-story buildings, densely populated areas, commercial and industrial establishments. ये इस टाइप के कंटेनर्स आपने देखे भी होंगे डिफरेंट लोकेलिटीज़ में। लार्ज स्टोरेज यूज फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो हर वेस्ट की टाइप जो है अलग है और उसके लिए रिक्वायर्ड कंटेनर भी अलग हो सकता है। एंड सिमिलरली आफ्टर प्लेसिंग सच कंटेनर्स यू वुड बी नीडिंग द कंसर्न मशीनरी एज वेल। अब इसको उठाने के लिए जो गाड़ी चाहिए वो भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। एंड हाउ मेनी कंटेनर्स हैव बीन प्लेस्ड इन एंटायर सिटी, तो वो व्हीकल जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए डिप्लॉयड होगी, एंड दैट व्हीकल वोंट बी विजिटिंग एनी अदर प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। देन कम्स द storage effects. There can be putrefaction, adsorption of fluids, and contamination. Putrefaction means microbial decomposition via bacteria and fungi leading to vermin and odor. ये मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वेस्ट में, उसमें इतनी ज़्यादा एरोबिक एक्टिविटी के स्टार्ट होने एंड एनएरोबिक कंडीशंस के डेवलप होने के चांसेस हैं। एडसॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स, इफ मोर देन अ वीक द वाटर विल बिकम, अगर आपने एक वीक से ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया और स्टोरेज उसकी एक वीक तक रही है वहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, द वाटर विल बिकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, द मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड गार्डन मटेरियल मूविंग इनटू द पेपर एज वेल, तो वो सारा होमोजेनाइज्ड हो जाएगा वेस्ट जिसमें मॉइस्चर कंटेंट फैल जाएगा।
तो फ्लूइड्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसी तरह कंटामिनेशन है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पेंट हैड ग्रेट पोटेंशियल टू कंटामिनेट अ ग्रेट डील ऑफ प्लास्टिक, एन आर्ग्यूमेंट फॉर सोर्स सेपरेशन ऑफ रिसाइकलेबल्स। तो फिर इसी तरह से जितनी भी उसमें कंटामिनेंट्स होंगे वो जो है वो कंटामिनेशन कॉज करेंगे, और इसी वजह से जो आपकी सोर्स सेग्रीगेशन है उसको प्रमोट किया जाता है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। लो राइज के लिए आपको स्मॉल बिन्स चाहिए, ये जनरल बातें हैं, अब इनके ऊपर टाइम लगाना। लो एंड मीडियम राइज अपार्टमेंट्स के लिए would be needing a little bit larger container as compared to the previous one. Individual plastic और galvanized containers हो सकते हैं, large और fixed containers हो सकते हैं। Similarly, high rise buildings के लिए enclosed storage containers और disposable bag in conjunction with the processing equipment, compaction, shredding and baling, etc. These processes must be in place over there. Large open top containers for uncompact bulky waste and large open top containers for recycled material. Large open top containers and containers equipped with compaction equipment must be placed in the commercial facilities. Container location, side or rear of house, streets or common location identified for that purpose. Public health and aesthetic potential of for odor and vermin must be considered. आप ये पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये बिल्कुल चौक में वेस्ट जो है उसको प्लेस किया गया, एंड इट इज़ बीइंग लाइक store waste is being for years or for months. Nobody is attending the point and nobody is having a look at this point. और ये middle of the cross section जो है उसमें वेस्ट पड़ा हुआ है, और ये हमारे बहुत सारे सिटीज़ एंड बहुत सारे टाउन्स के अंदर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है। तो यही पब्लिक हेल्थ और एस्थेटिक्स को जो है वो ख़राब करती है। Containers must be chosen wisely, and it must be made of local or readily available material, easy to identify shape, color or special marking, yellow color common in Pakistan, sturdy and easy to repair and replace होने चाहिए. Do not prevent access by waste pickers or scavengers. Similarly, appropriate to local site conditions. Wheels where streets are paved, heavy where the wind is stronger, and material which do not attract theft. Plastic cannot readily be recycled. तो अब ये चीज़ें हैं जो आपको फर्दर ऐड करनी पड़ती हैं ऑफ द सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग ऑफ द वेस्ट स्टोरेज कंटेनर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो इसमें क्लियरली क्रिस्टल है। एक चीज़ तो आपको एक चीज़ तो आप जहन में रखें, एज वी आर लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, एक चीज़ जहन में रखें कि जो एक सिटी है, फॉर एग्जांपल हम लाहौर की बात करते हैं, तो लाहौर में अगर आपको कंटेनर्स चाहिए तो डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी के कंटेनर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। और इतनी एक हाई पॉपुलेशन के सिटी के लिए ऑब्वियसली वन टाइप ऑफ कंटेनर वॉन्ट बी फिजिबल टू प्रोवाइड। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़ ऑफ कंटेनर्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको रेलिवेंट व्हीकल्स प्रोक्योर करना पड़ेंगी। व्हीकल्स का तो आ गया ट्रांसपोर्टेशन में। कंटेनर्स हमारे हैं जी स्टोरेज में, तो स्टोरेज हम पढ़ रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जो कंटेनर्स आपने फॉर एग्जांपल मिक्स कॉम्बिनेशंस के कंटेनर्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो उसमें भी आपको ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, मेड ऑफ लोकल रेडिली अवेलेबल मटेरियल, ऐसा नहीं है कि आपने लाहौर के लिए 10,000 कंटेनर ले लिए हैं तो बस अब आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया, स्टार्ट हो गया, अब आप बस छोड़ेंगे नहीं, वेस्ट जो है वो टोटली रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपको ये 10,000 कंटेनर्स पूरे शहर में ओपनली रखने हैं, दिन रात 24 घंटे वहीं पे रहने हैं ये कंटेनर्स, ठीक है। तो अब ये कंटेनर्स की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ना तो इनको चोरी होने का खतरा हो, ना इनको जो आपका कलेक्शन क्रू है
दो तरह की डैमेजेस आ सकते हैं जो कलेक्शन क्रू की तरफ से हैं, इसके लोगों की तरफ से जो आ सकते हैं वो अलग हैं। एक कंटेनर एक जगह पे पड़ा है, बिल्कुल ठीक जगह पे रखा है आपने, लेकिन जो कलेक्शन क्रू है वो उस दिन उस माइंड में नहीं है, उस सेटअप के साथ नहीं आ रहा कि मैं ड्यूटी करूंगा ऑनेस्टली, या उसको कोई टेंशन है, कोई उसको डिप्रेशन है, परेशानी है घर पे, या कोई और इशू हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है। तो जब वो उसको हैंडल करेगा तो वो उसको डैमेज कर सकता है। उसको डैमेज करने के साथ साथ इसी तरह अगर वो कर रहा है दूसरा, क्या कहते हैं, व्हीकल जो आपकी कलेक्ट कर रही है उसको मैकेनिकली उसको एम्प्टी कर रही है, वो व्हीकल इटसेल्फ जो है वो उसको डैमेज कर सकती है इन टर्म्स ऑफ के वापस रखते हुए गिर गया, अभी हाइट पे था कंटेनर तो नीचे गिर गया, तो अब वो डैमेज हो गया, तो अब क्या इसमें किसकी गलती है? ये तो हो गया आपके अपने सिस्टम की डेफिशिएंसी। अब लोग क्या करते हैं, लोग अंदर आके आग फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं, घर में अंगीठी से आग निकाली है ला के उधर फेंक दी है सर्दियों में, आग दुकान पे जलाई हुई थी, बैठ के वो सर्दी थी तो वहां से उठा के सारा वो कोयले अंदर, वो जलते रहेंगे अंदर, जलते रहेंगे, धुआं निकलता रहेगा, नो बॉडी केयर्स। वेस्ट का हीप है, धुआं निकल रहा है, उनको क्या, किसी को क्या लगे, चाहे उस घर के सामने से निकल रहा है, ही वॉन्ट बी केयरिंग के मेरे घर के सामने वेस्ट मैनेजमेंट वालों का कंटेनर पड़ा है और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो मैं इसको देख लूँ, मैं उनको बता दूं कि भाई इसको देख लो ये क्या है, आग लग जाएगी, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक ये हो जाएगा। कोई जनाब आ रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई है घर की, कोई इस तरह का सेटअप है, तो वहाँ पे जनाब मशीनरी आ रही है, फ्रिक्वेंटली आ जा रही है मशीनरी, तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, मतलब वो हिट कर देता कंटेनर को, या इस तरह का कोई मसला। सिमिलरली आपको ये कि कोई लोकल है वहाँ का, वो वैसे ही जिदबाजी में, मतलब हमारे घर के सामने क्यों पड़ा है, उसने उधर कर दिया, उसने उधर कर दिया, उसने उधर कर दिया, उसने, तो ये चीज वो इसको खत्म करने के लिए वो वैसे ही कोई गुस्से में आके तोड़ देगा, कोई उठा के उधर फेंक देगा, कोई नाले में फेंक देगा, कोई उसको उठा के रोड पे रख के आ जाएगा खींच के। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जो हम ये एक दो तीन चार पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ना, तो ये ऐसे नहीं है। जब आप सिस्टम में जाते हैं तो वो स्लाइड्स नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस है, फिर आप देखते हैं वहां पे कि अच्छा ये बात लिखी हुई थी तो इसका मतलब ये था। अच्छा, अब अगर लोकल रेडिली अवेलेबल मटेरियल नहीं होगा ना, तो जितने भी एक शहर में 10,000 कंटेनर, मैंने कहा है, मैंने आपको 7-8 बातें बताई हैं, तो पूरे 1.5 करोड़ में से या 1 करोड़ आबादी में से 8-10 लोगों का तो ऐसा माइंड सेटअप बनेगा ना कि डेली के 10 कंटेनर्स आपके डैमेज हो रहे हैं, हालांकि इससे बहुत ज्यादा होते हैं आपके। मैं कहता हूँ आपके कंटेनर्स जो डैमेज होते हैं, इवन आप काउंट भी नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं चलता कौन सा किस दिन डैमेज हुआ है। ये तो आपको तब पता चलता है जब आप कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और आपके ड्राइवर्स हेल्पर्स को परेशानी होती है। व्हील ही टूट, एग्जाम्पल व्हील लगे हुए थे और वो व्हील टूट गए हैं, अब कंटेनर भरा हुआ है उससे, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से, या वेट वेस्ट है, जनरल वेस्ट है, तो एजेड है आपका वर्कर, वो कैसे उसको खींच के लेके आएगा गाड़ी तक? गाड़ी तो ऐसे आप हर जगह पे घुमा के सीधी करके कंटेनर के आगे पीछे तो नहीं सकते, गाड़ी तो सीधी रोड पे रहेगी इन अ सिंगल डायरेक्शन। यू वुड बी ड्रैगिंग दैट कंटेनर टू द व्हीकल एंड सेटिंग दैट कंटेनर फॉर कलेक्शन विद द व्हीकल, और उसकी आर्म्स उसके अंदर फिक्स करेंगे, एंड देन इट वुड बी लिफ्टिंग दैट कंटेनर, वो तो लिफ्ट करेगी मैकेनिकली एंड एम्प्टी करेगी मैकेनिकली, it won't be dragging that container to fix at a certain position for lifting that container। तो ये चीज जो है आपके सैनिटरी हेल्पर ने करनी है, अगर उसके व्हील ही नहीं है तो उसको कैसे ड्रैग करेगा? उसको तो हेल्थ एंड सेफ्टी इशू हो जाएगा, उसकी तो कमर बैठ जाएगी, उसके पाँव पे लग सकता है वही कंटेनर जब वो वापस रख रहे हैं। जब व्हील होता है तो आपका पाँव नीचे भी हो तो आप मसला नहीं होता। ये चीजें हैं, इजीली अवेलेबल मटेरियल होगा तो वो डैमेज कंटेनर्स को रिपेयर करने में आसानी होगी। आइडेंटिफाई इजीली होना चाहिए कि आपके हेल्पर, इसमें टर्नओवर इतना ज्यादा होता है, लोग एक 10 दिन वही बंदा करता है जिसके पास दुनिया में और कोई काम नहीं होता, जो
कि बस अब मुझे कुछ नहीं मिल सकता, तो मैंने कुछ ना कुछ तो खाना है, या अपने मेरी ये लायबिलिटीज हैं, तो फिर वो आता है इस फील्ड में सैनिटरी हेल्पर बनने के लिए। तो जैसे ही उसको मिलता है काम, फिर वो छोड़ जाता है। जब वो गया, उसको ट्रेन किया था आपने, उसको समझाया था आपने, उसको सारी चीजें गाइड की थी, उसको लोकेशन का पता था, उसको टाइप ऑफ कंटेनर का पता था, उसको ये पता था कि यहाँ पे किस हिसाब का वेस्ट आता है, वो चला गया। अब आपको नया वर्कर हायर करके दे दिया, आप उस नए वर्कर को किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर से उसको सारी चीजें समझाएं। मेंटेनेंस के लिए अलग से आपकी टीम होगी, जो जाके उसको रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे, और उनको बताना होगा। उनको कैसे ख्वाब आ जाएगी? अब वो टीम को ख्वाब तो नहीं आएगी कि पूरे लाहौर में दरे जाएं, या गुलबर्ग जाएं, या लिबर्टी जाएं, या मॉडल टाउन में जाएं, या बरकत मार्केट में जाएं, या पंजाबी यूनिवर्सिटी वाली साइड पे निकल जाएं, गुलशन इकबाल चले जाएं, बेदिया रोड पे चले जाएं, उधर सोजो वाटर की तरफ, ठोकर न्याज बेग की तरफ चले जाएं, रायवेंड की तरफ चले जाएं। मतलब इतना बड़ा शहर है, तो किधर जाए वो टीम? उसको क्या पता कि कहाँ मैंने जाना? उनका पूरा प्रॉपर शेड्यूल होता है। ये टीम मैंने नाम लिया इसी वजह से टीम है। उनका काम ही यही है कि उनको जो फील्ड स्टाफ है, वो बताएगा कि भाई यूनियन काउंसिल नंबर 30, इसमें जाओ, इसमें 15 कंटेनर डैमेज है, ये पॉइंट है, ये ठीक करके हमें रिपोर्ट सेंड करो। वो ठीक करेंगे। अगली यूनियन काउंसिल नंबर 31 में चले जाओ, वहां पे 10 कंटेनर्स हैं। तो दे आर विजिटिंग दोज एरियाज ऑन रेगुलर बेसिस। उनकी जॉब ही यही है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार डैमेज होगा तो वो चली जाएगी टीम, मुफ्त में तनख्वाह ले रही। हम जो कहते हैं ना कि वो इतना इतना ज्यादा पैसा दे के तो हम इस सिस्टम को चला रहे हैं, तो ये तो हम खुद भी चला सकते थे। तो ये तो मसला ये है कि कैसे चला सकते थे खुद ही। यहाँ पे मेरे आप लोग माशाल्लाह से, आप लोगों को आप लोग फ्रीक्वेंटली विजिट भी करते होंगे, कई लोगों ने किया भी, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज। तो वहां पे रिसोर्सेज उनके पास कितने हैं, और वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी तरह से देखी होंगी चीजें। तो ये फैक्टर्स ऐसे नहीं है कि आप इनको फिंगर टिप्स पे वैसे ही बगैर समझे लिख लें, बगैर समझे इनको जो है वो आप मेंशन कर दें, बल्कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली जो इश्यूज होते हैं उन चीज़ों को जहन में रखें। 10-10 कंटेनर तो एक ही दिन में गायब हो जाते हैं, वैसे ही उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे वो गटर का कवर नहीं छोड़ते। कंटेनर तो फिर वैल्यूएबल मटेरियल है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको सहन, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी आपको। आपके वही आपके आपके स्टाफ को कोई कुछ नहीं समझता। जो सबसे, वो स्टाफ खुद को कुछ नहीं समझता, खुद को ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझते, या लोग उनको ह्यूमन बीइंग नहीं समझते, तो उनकी चीज़ों की कौन केयर करेगा? इसलिए ये सिस्टम जो है, हमने इसको तो, हमारी हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा जो सेटअप है, हमारी जो इंटेंशन टुवर्ड दिस सिस्टम है, वो टोटली और है, अफसरों वाली है, नवाबशाही वाली है। हम इस सिस्टम को अपने साथ अटैच रखना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम रहें, वेस्ट मैनेजमेंट ना हो साथ। ये क्या कूड़े का सिस्टम है? ये कोई चीज़ है यार? कोई हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पायलट हो, यही रहे बस। लेकिन ये नहीं पता कि ये सब वेस्ट जनरेट करते हैं। जब ये होंगे तो वेस्ट तो जनरेट होगा। जब वेस्ट जनरेट होगा तो वो कौन मैनेज करेगा? तो उस सिस्टम में, हम उस सिस्टम को एक नोबल या एक रिस्पेक्टेबल सेटअप ही नहीं समझते। थोड़ा सा घूम के दूसरी गली से जब मस्जिद में आते हैं, तो फिर वहां पे बैठ के हम कह रहे होते हैं सफाई तो निस्फ ईमान है। अब एक, आप इसी आप समझें, अगर ये पाई ग्राफ है आपका, और इसमें से ये अगर मैं इसमें आपको ट्राई कर लेते हैं, रादर के इसी के ऊपर आप करें। ये अगर आपका पाई है, और इसको आप कहते हैं कि ये आपका हाफ ऑफ द फेथ जो है, वो आपका है जी, जो आप कहते हैं, वो आप कहते हैं कि जी ये आधा ईमान तो हमारा ये है सफाई, ठीक है। इसमें आधे में पूरे में आपकी नमाज, रोजे, हाय ज़कात, अखलाक और सब कुछ आ रहा है, ये सारी चीजें। तो ये आधा अगर आपने एलिमिनेट कर दिया है, आप ये तो आपके अंदर है ही नहीं।
तो फिर आप इधर में इस खाते में कितने स्ट्रांग हैं वो भी हम बेहतर समझ। अब मैं इस साइड पे कितना स्ट्रांग हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसमें कितना हूँ ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर ओवरऑल हम अपना खुद ही अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं कि हम किधर खड़े हैं और हमारा क्या रोल है सोसाइटी में, और हम क्या अपने ऑब्लिगेशंस की तरफ कितना जा रहे हैं और अपनी दुनियादारी की तरफ कितना जा रहे हैं, और हम किसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कि कितना को हमारे अंदर जो है स्किल्स हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत कोई बड़े टॉप इंजीनियर बन जाएं, लेकिन हमें इवन एक ऐसी चीज नहीं है हमारे पास कि हम सिर्फ अपने अपने ही जनरेटेड वेस्ट को मैनेज कर सकें। हमारे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है अभी कि हम सिर्फ अपने जनरेटेड वेस्ट को मैनेज कर सकें, और वैसे हम पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। तो जो एक सिस्टम है जो हर एक के पास एक अपनी स्किल्स हैं, हर एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसमें स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड मैन पावर है, स्किल्ड लोग हैं, वो अपने अपने काम एफिशिएंटली कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। अगर वो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं तो ये सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो रहा, इसमें क्यों नहीं लोग आ रहे। ठीक है, तो इसको निग्लेक्ट, ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये है, हम ये नहीं है कि सारे काम छोड़ के सारे इधर आ जाएं। कहने का मकसद ये है कि ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर भी काम होना चाहिए, इसके अंदर भी इनोवेशन होनी चाहिए, इसके अंदर भी हमें एक्सेल करना चाहिए, इसको भी हमें ओन करना चाहिए। ये कोई बाहर से बेस नहीं आया, ये हमने खुद जनरेट। ठीक है, with that I would be concluding the storage section, and we would be moving to the collection of the solid waste as we are